गुड इवनिंग, नमस्कार ते सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਾਂਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਯਾਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਵਿੱਖ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ, ਯੰਗ ਐਂਡ ਰੈਸਟਲੈਸ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਟੁਡੇਜ਼ ਯੂਥ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਡਾਊਟ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ VFS ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਜੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਜੀ as CP, additional CP traffic and ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਵਰਗੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਫਿਰ IRS ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ GST ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਤੌਰ IPS ਆਫੀਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ CP ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ, ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਹਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਦੀ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਰੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤੇ what is the way forward? Where can our young find a sense of direction and purpose? Deepak ji, please. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10-12 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਐਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਥ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ
और क्योंकि हमारे साथ और भी ऑडियंस जुड़ी होगी और भी स्टेट से, देश से लोग इसको देखेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो और यूथ के भी कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करें। पर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ यूथ को की समझते हैं। यूथ की वैसे तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन जो डेफिनेशन सरकारी चलती है उसके हिसाब से यूथ एक ਤਾਂ यूथ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਏਜ 35 ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ, ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ एम्प्लॉयमेंट, या जिन्हों कहिए फ्यूचर। और पंजाब के हिसाब नाल, क्योंकि पंजाब का काफी यूथ एग्रीकल्चर दे विच हैगा ते वो एग्री सिनेरियो ਨੂੰ लेके भी काफी चिंतित रहते हैं। जितना पीछे ऐसे देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से काफी यूथ एग्रीकल्चर से दूर होता जा रहा है, बिछड़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि एम्प्लॉयमेंट हमें कैसे मिलेगी। इससे ही जुड़ता हुआ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਟਲਿੰਗ ਅਬਰੋਡ, यानी कि बाहर जाना। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਸਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੀਜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ पॉपुलैरिटी या फेम। यूथ अपना फेमस होना चाहता है, इसके लिए की करते हैं? हर व्यक्ति फेसबुक पे आ रहा है, ट्विटर पे आ रहा है, या फिर अपने टिकटॉक पे वीडियो बना के पाते हैं, किसी न किसी तरीके नाल कोई होर उपराले करते हैं, अपने गुट बना लेंगे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग अपने आप को गैंगस्टर कहने की भी कोशिश करते हैं। मतलब पॉपुलैरिटी के हर तरीके की चीज हथकंडा आजमा के देखते हैं। चौथा इसके नाल ही लिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ब्रांड के कपड़े होने चाहिए हैं। यानी कि ये चीजें हमारे यूथ को बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं। पांचवा लुक्स या फिर अपीयरेंस। ये एक नया फैशन चला हुआ है आजकल। हर आदमी ये देखता है कि मैं कैसा दिखता हूँ और लोग, कितने लोग मुझे देखते हैं, मैं फैशनेबल लगता हूँ कि नहीं। ये हमारे यूथ के अंदर एक बहुत बड़ा दिन भर उनके दिमाग में घूमता रहता है।
अगला है रिलेशनशिप्स, यानी कि प्यार मोहब्बत या अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप कैसी है और लोगों से कैसी है। ये रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमने देखा है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 17 18 ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿजेस ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲਿੰਗ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇशनशिप के लिंक है, कई बार यूथ फैसला कर लेता है, पार्टनर ਨੂੰ चुनता है, वो इस बेसिस पे चुन लेता है कि ये पार्टनर मुझे बाहर ले जाएगा। उसके बाद रिलेशनशिप में धोखे मिलते हैं, पार्टनर या तो पैसे लेके भाग जाता है या वहां जाकर प्यार उत्पन्न नहीं होता। तो रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आखिरी कंसर्न जो आज हम लेंगे वो है कांस्टेंट कंपैरिजन, जिसको पंजाबी में कहते हैं रीस करना। आपने ट्रकों के पीछे भी लिखा देखा होगा, जलो मत रीस करो, यानी कि अपने साथ के अपने आसपास के लोगों को देखना, कौन फेसबुक पे क्या फोटो डाल रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, कौन क्या खा रहा है, इन चीजों से अपने मन में जलन पैदा करना, ये कांस्टेंट कंपैरिजन। तो ये इश्यूज हैं जो हमारे यूथ को मोटा मोटी हमारे एक्सपीरियंस में कंसर्न करते हैं। बिना समय बर्बाद किए अगले पॉइंट पे आते हैं कि इन इश्यूज से यूथ को प्रॉब्लम क्या आती है और कहाँ प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हमने बात करी एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर एग्रीकल्चर सिनेरियो या फ्यूचर में सेटल होने को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो है लैक ऑफ स्किल्स। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮਿਲਿਆ 2021 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੀ ਸਕਿਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 10 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸੈਟਲਿੰਗ ਅਬਰੋਡ। ਸੈਟਲਿੰਗ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं, जब आदमी दिन रात ये सोचता है कि मुझे बाहर जाना है, जैसे मर्जी जाना है, कभी वो किसी के बहकावे में आता है, कभी वो आईलेट्स के बैंड के लिए पैसे दे रहा होता है, कभी वो बाहर जाने के लिए किसी लड़के या लड़की से शादी कर रहा होता है, तो उसके बाद अल्टीमेटली फ्रॉड्स होते हैं। कितने ही केस स्पेशल हमारी विंग्स बनी हुई हैं जो कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम कर रही हैं। आपको वीजा के फ्रॉड्स होते हैं, बाकी जो वहां जाने के बाद भी जो नौकरी आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलती या आपका पार्टनर आपको छोड़ देता है। तो इस तरीके के फ्रॉड से हमारा यूथ दिन रात उलझता रहता है। तीसरा, बीइंग फेमस, पॉपुलैरिटी। इसके सबसे ज्यादा नुकसान देखे जाते हैं जो आज हम देख रहे हैं हमारे समाज में। फन कल्चर, वायलेंस, हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप कैसे हीरो की वर्शिप कर रहे हैं, किसी अच्छे व्यक्ति की वर्शिप नहीं कर रहे ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁੰਡਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਲੇ ਵਗੈरह ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀरो मान के ਉਹਨਾਂ ਦੀ वर्शिप कर रहे हैं। इसी के साथ ड्रग्स, पॉपुलैरिटी के लिए बुरी संगति के ये असर, ड्रग्स, एल्कोहल और सब तो इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪॉपुलैरिटी ਫੇਮ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ एडिक्शन। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੈਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਲੁਕਸ ਤੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇं, लुक्स अपीयरेंस इस एडिक्शन के नाल की होता है कल्चर ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि मुझे तुरंत रिएक्शन चाहिए। आज हम एक पोस्ट डालते हैं, दिन भर आदमी देखता रहता है मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने शेयर हुए, कितने लोगों ने मुझे कमेंट किया।
तो कितने लोगों ने हार्ट दिए, उसको स्नैपचैट पे भी देखेगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह। तो आपका दिन भर का फोकस तो इसी चीज पे चला गया। जो आपको अपनी स्किल अपग्रेड करनी थी, और काम करने थे, अपनी फैमिली से बात करनी थी, पेरेंट्स से बात करनी थी, रिलेशनशिप को टाइम देना था, वो सारा टाइम खा गया ये। इसके अगला, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ अलग-अलग क्राइम करने ਲਈ प्रेरित ਹੁੰਦੇ हैं। कोई क्राइम करता है, कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, कोई स्नैचिंग करता है, कोई बैंक लुੱਟਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ है, कोई फाइनेंशियल क्राइम करता है। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਮਤਾੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, झारखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ हैं ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ हैं, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ हैं। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੈਗਾ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। रिलेशनशिप तो ਹੁੰਦਾ है हार्ट ब्रेक, यानी कि दिल टूट जाना। नाल ही ਹੁੰਦਾ है फ्रॉड ते चीटिंग। ये फ्रॉड तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ फ्रॉड हो गया कि विदेश जाने ਲਈ रिलेशनशिप ਦੇ फ्रॉड हो ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਸੀਂ भी समझाइश करते हैं, नहीं सुनते, बच के ब्याह कर लेते हैं, क्योंकि वो एक इनमेच्योर पे जल्दीबाजी से लिखा गया फैसला होता है। बाद में उसके दुष्परिणाम आते हैं, उनकी बनती नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तलाक लेते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों का भविष्य भी खराब होता है। कांस्टेंट कंपैरिजन, कांस्टेंट कंपैरिजन से ये जो हमारे साथ प्रोफेशनल काउंसलर जुड़े हैं आपको बेटर बताएंगे। इनसे समस्याएं होती हैं एंजाइटी, डिप्रेशन आदि। यानी कि दूसरे की थाली में हमें घी ज्यादा लगता है, जो हमारे पास है उसकी हम वैल्यू नहीं करते। ये एक मानसिक बीमारी बन जाती है। दिन भर आदमी सोचता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये समस्याएं और कंसर्न्स अब आते हैं जल्दी से समाधान की तरफ। तो समाधान क्या होंगे इन चीजों के? हमारे साडे यूथ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਭਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, मेरे ख्याल कलर बढ़िया नहीं आ रहा। इनोवेट एंड अपग्रेड। इनोवेशन ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲੇ, ਮਾਨਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। अपग्रेड यानी कि अपनी स्किल ਨੂੰ अपग्रेड करना। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। आज हमारे साथ काफी सारे प्रोफेशनल काउंसलर्स इस वेबिनार में जुड़े हैं। ये आपको बताएंगे कि कौन सी आपकी स्किल है जो आपको अपग्रेड करनी है, किस तरीके से आप अपने आप को बेटर इक्विप कर सकते हो।
वैसे ही जो सेटलिंग अब्रॉड वाला हमारा दूसरा इशू है, उसके लिए भी आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग की जरूरत है। आप कंसल्टेंट से मिलें, वीजा कंसल्टेंट से मिलें जो कि अधिकृत हैं, ਜਿਹੜੇ कि रजिस्टर्ड है नहीं, उन्होंने पूछो कि भी सानू ये समस्या है, ਇਹਦਾ ਕੀ हल है, ऐसे कितना जे बाहर जाना भी चाहते हैं कितना जा सकते हैं। इसके अलावा सेटलिंग अब्रॉड वाले इशू में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई और समस्या आती है, तुरंत पुलिस नाल संपर्क करो, 112 डायल करो या फिर अपने संबंधित जिले ਨੂੰ संपर्क करो। तीसरी प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੁक्स अपीयरेंस ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁक्स अपीयरेंस ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ? ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੇ ਮਾਡਲ ਆਈਕਨ ਬਣੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, फिर अपने अपने आगे पोस्टिंग पे आए, सब तो इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में तुहानू छोटी जी ड्राइंग नाल समझाना, यानी कि टाइम सर उठना, समय पे सोना और सही चीज का खाना पीना। अगर इन 30 चीजों का डिसिप्लिन आप रखेंगे तो फिर आपके जो लुक्स, अपीयरेंस, हेल्थ, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, इनर ब्यूटी अच्छी होगी, तो आपकी आउटर अपने आप अच्छी हो जाएगी, अपीयरेंस अच्छी होगी, आप अच्छा फील करेंगे, आपका व्यवहार, मिजाज सब कुछ अच्छा रहेगा। अपने सोने का, उठने का और खाने पीने का ध्यान रखें, और ये जब ध्यान रखेंगे तो इसी के साथ आपके मोबाइल एडिक्शन का भी आपको हल मिल जाएगा। जब आप टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे, तो काफी सारी समस्याएं आपकी सॉल्व होने लगेंगी। उसके बाद आते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसके लिए सॉल्यूशन है सिर्फ हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, क्राइम की तरफ जाएंगे, तो इसके क्या दुष्परिणाम है? क्राइम नाल अपन जेल मिलेगी, या फिर कई लोग सुसाइड भी कर लेंगे, ते अपनी पूरी लाइफ ਨੂੰ स्पॉइल कर लेंगे। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 16-16 ਘੰਟੇ काम ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 16 ਘੰਟੇ काम ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ प्रोग्रेस ਨੂੰ रोक सके। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, हार्ड वर्क को तैयार हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की गारंटी। अगला पॉइंट, कांस्टेंट कंपैरिजन। कांस्टेंट कंपैरिजन जब आप करते हैं, इसके लिए आपको एंजाइटी, डिप्रेशन से बचने का एक सिंपल तरीका है, बी योरसेल्फ। जैसे आप हो, जिस तरीके के आप हो, उस चीज को एंजॉय करो। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये है एक मछली और ये है एक चिड़िया। मछली पानी में तैरती है, उड़ नहीं सकती, चिड़िया उड़ती है, पानी में नहीं तैर सकती, लेकिन दोनों एक दूसरे से कंपेयर नहीं किए जा सकते। इसकी अपनी क्वालिटीज हैं, इसकी अपनी क्वालिटीज हैं। वैसे ही आप, आपका छोटा बड़ा भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, वो सारे के सारे अपने आप में अलग है, यूनिक है, कंपैरिजन की कोई लोड़ नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। रिलेशनशिप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ पेशेंस, ਤੇ ਦੂਜਾ फैमिली। पेशेंस यानी कि जेकर ਤੁਸੀਂ रिलेशनशिप ਦੇ ਵਿੱਚ नए आए हो, थोड़ा टाइम दो, ज्यादा जल्दी कोई डिसीजन ना लियो शादी ब्याह का। जेकर ब्याह कर लिया, फिर अपने हस्बैंड वाइफ ਨੂੰ पेशेंस ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਜਲਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। कोई भी फैसला लेने तो पहला अपने परिवार ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ
फिर वो कोई ना कोई मेजर स्टेप चुकने ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਫੇਮ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਨ ਕਲਚਰ, ਵਾਇਲੈਂਸ, ਹੀਰੋ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, लेकिन हीरो वर्शिप करो राइट हीरोज ਦੀ। मैं 2-3 उदाहरण ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਾਹरण ਹੈਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ सम्मानयोग मिल्खा सिंह जी ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ एक नॉर्मल परिवार तो आए ਸੀਗੇ। उन्होंने कितना नाम कमाया क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया, डिसिप्लिन से रहे। ऐसे हीरोज की आप वर्शिप करिए। दूसरा एग्जांपल मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, सोनालिका कंपनी जो ट्रैक्टर बनाती है, इसके मालिक शायद पहले अपने करियर में LIC एजेंट का काम करते थे। उसके बाद आज आप देखो आज जो कितने पहुंच गए। तो एक व्यक्ति अगर LIC एजेंट से, इसी तरीके से धीरू भाई अंबानी की कहानी में भी कहते हैं कि वो किसी पेट्रोल पंप पे या तेल बेचने का काम करते थे। उससे यहाँ तक का जो उनका सफर है वो सिर्फ हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से संभव हुआ है। इसलिए हीरो वर्शिप जरूर करें, लेकिन सही हीरोज चुने। चूज द हीरोज वाइजली। और गन कल्चर, ड्रग्स, वायलेंस, इनसे मैंने आपको बता दिया, जेल, सुसाइड और जिंदगी स्पॉइल करने के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं अज अपना इत्थे विराम दिंदा होया तानू सिर्फ एक शेयर तुहाडे नाल छड़ के अपने यूथ नू याद दिलांदा होया उन्हां दी पावर मैं जाना चाहना। वो शेयर ये हैगा कि हम भी दरिया हैं अपना हुनर हमें मालूम है, हम भी दरिया हैं अपना हुनर हमें मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। धन्यवाद, सत श्री अकाल। बहुत खूब, थैंक यू सो मच दीपक जी। And I think one of the most beautiful things that is to take away from what you said, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਸ ਅਨਕਲਟਰਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਯੂਥ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੇਕ ਅਵੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਕਲਟਰਡ ਮਾਈਂਡ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ मैं भी हूँ स्विच करांगा फ्रॉम पंजाबी टू हिंदी। सो मेरे साथ एक तो आज पल्लवी खन्ना जी हैं जो चीफ काउंसलर हैं विद सेज एडवाइस और करीब 30 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं काउंसलिंग का। बहुत सारे यूथ के साथ वो ऑलरेडी डील कर चुकी हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। उन्होंने सुसाइडल टेंडेंसी वाले केसेस भी देखे हैं, उन्होंने बहुत से यूथ ऐसे भी देखे हैं जो अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके और बहुत से वेरिड मसलों को लेके परेशान रहे हैं। एंड पल्लवी जी से उनके वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स आजकल वो हैप्पीनेस पर PhD कर रही हैं, सो यूथ के लिए दैट हैप्पीनेस एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज खासकर जब हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुशी के बारे में भी बात करें। और उनके साथ साथ मेरे पास आज इसी पैनल पर दूसरे स्पेशलिस्ट करियर कंसल्टेंट एंड स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को करियर एडवाइस देने वाले सौरभ नंदा हैं, जो NIT जलंधर से कंप्यूटर इंजीनियर हैं। उसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम किया है और अपनी मास्टर्स हासिल की है इन साइकोलॉजी उसके बाद। एंड दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग शिफ्ट। उसके बाद श्री गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली और उसके बाद जापान, डेनमार्क में 10 साल काम किया है। 17,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों और नौजवानों को, प्रोफेशनल्स को उनके ज़िंदगी में एक सही दिशा प्रदान करने में उन्होंने योगदान दिया है। सो आजकल सोशल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे इन क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स दैट आई फाउंड अबाउट हिम इज़ कि जब भी मैंने इनसे बात की है तो ही सेज देयर सो मच टू बी डन इन आवर सोसाइटी। और आज ही जब इनसे मेरा डिस्कशन चल रहा था तो मुद्दा सामने आया था कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अगर पंजाब में बाहर के स्टेट के नौजवान आके काम कर रहे हैं तो हमें अपने अंदर झांक कर ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे यूथ क्यों नहीं मोटिवेट हो रहे यहाँ जो है उसे सुधारने में, रादर देन दैट वो यहाँ से छोड़कर और क्रिटिसाइज करके अपने माहौल को बाहर जाना चाहते हैं।
So बहुत से सवाल होंगे. I will open the floor to Pallavi ji and Saurabh to take over and take this discussion forward. थैंक यू इंद्रजीत. सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू कम ऑन द सीट ऑफ द इंटरव्यूअर और द पर्सन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन. हमने दीपक जी को सुना, बहुत अच्छे तरीके से दीपक जी ने सारा जो भी कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, जटिलताएं जो भी हमारे यूथ के आगे हैं, जो भी समस्याएं हैं, बहुत क्लैरिटी और खूबसूरती के साथ दीपक जी ने हमें हमारे सामने पेश किया है. और अब मैं आई वुड लाइक टू नाउ थ्रो द बॉल इन सौरभ्स कोर्ट. जैसे कि इंद्रजीत ने बताया, सौरभ की अपनी जर्नी बहुत लंबी रही है. अपने आप को समझने में और ये जानने में कि मुझे किस काम में खुशी मिलती है, सौरभ ने बहुत समय अपने ऊपर लगाया है. तो मैं सौरभ को ये प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न हमारे टॉपिक के साथ ही जुड़ा हुआ मैं पूछना ये चाहूँगी कि एज एन इंटरनेशनल यूथ मेंटर एंड करियर काउंसलर सौरभ, आपको क्या लगता है कि हमारे यूथ के आगे किन किन समस्याओं हमारे यूथ को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या कन्फ्यूजन्स है उनके आगे? इतनी सारी हम देख रहे हैं डिससैटिस्फैक्शन है. वो कोई कोर्स चुनते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाके उनको लगता है कि ये हमने कोर्स नहीं करना था, हमने नहीं सोचा था कि इस कोर्स में ये हमें पढ़ने को मिलेगा, इट्स नॉट लाइक व्हाट वी हैड थॉट. और जब वो काम करने जाते हैं, फिर वहाँ पे मायूसी होती है कि जॉब जाकर हमें खुशी नहीं मिल रही, ये करना पड़ रहा है हमें. अगर हम देखें इंटर्नशिप्स के बारे में, तो हमारे देश में अनपेड इंटर्नशिप्स बहुत हैं. तो हम देखते हैं हमारे यूथ को एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा है इन अ वे, अनपेड इंटर्नशिप्स के नाम पे. तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बहुत आसान नहीं है हमारे यूथ के लिए, रास्ता बहुत आसान नहीं है. तो एज अ प्रोफेशनल आप इस पे क्या अपनी आप रोशनी डालिए प्लीज. थैंक यू सो मच मैम. एंड सबसे पहले मतलब थैंक यू सेज एडवाइस टीम, दीपक जी, इंद्रजीत सर एंड पल्लवी मैम, आपने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ये, जिसपे हम ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे हमें आज नहीं, एक्चुअली पिछले 10 सालों से लगातार डिस्कस करने चाहिए थे. बट आज हम यहाँ पहुंचे हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक सेलिब्रेशन की तरह है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैम आपने, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसका मैं आंसर करना चाहूंगा. पहले अगर मैं इंटरनेशनल यूथ की बात करूं, मैं इंटरनेशनल यूथ मेंटर हूं, क्योंकि मैं जापान, डेनमार्क वगैरह वहां पर जितने यूथ हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनके साथ मैं प्रोजेक्ट्स करता हूं, उनको गाइड करता हूं कि आपको आगे कैसे करना है, क्या करना है, एंड सो ऑन. तो अगर यूएन की बात करें, वो यूथ को कंसिडर करते हैं, उनका एज ब्रैकेट थोड़ा सा अलग है, वो 24 साल के करीब के उसको यूथ मानते हैं. और लेकिन अगर उसमें आप 35 साल वाले भी तक के लोग जोड़ दें, जैसे दीपक जी हैं और मैं हैं, तो जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो 4 बिलियन, वो 35 साल से कम वाले लोगों की 4 बिलियन से ज्यादा हो जाती है. मतलब कि अराउंड 55 to 60% जो पॉपुलेशन है अभी दुनिया की, वो यूथ है. लेकिन मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है सबसे, कि आपको लगता है कि यूथ कंट्रोल कर रहा है दुनिया को? हम अगर क्लाइमेट चेंज से बात करें या सस्टेनेबिलिटी की बात करें, इक्वल राइट्स की बात करें, वो नहीं है. तो सबसे बड़ी जो डिससैटिस्फैक्शन आती है यूथ से, वो ये आती है कि अगर हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं. तो मैम साइकोलॉजी से अगर हम बात करें, मनोविज्ञान की तरफ से, तो आपको ये भी समझ आएगा कि हर एक इंसान के अंदर एक इच्छा होती है कि वो अपने आसपास के जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन को, उनको कंट्रोल कर सकें, है ना. और जब आपको ये पता है कि कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो हमारे अंदर वो फेटलिस्ट, एक फेटलिज्म आ जाती है कि कुछ नहीं होने वाला, रहन दो जी, ऐ नहीं चेंज होना, छड्डो परे ते निकलो. ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ. ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੋਨਾਲਿਕਾ ਟਰੈਕਟਰਸ. ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਲਵਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ग्रो ਕੀਤਾ है. पर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने यूथ हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं? रिलेट ही नहीं कर पाते आप. दे आर ऑल इन देयर 50s एंड अबव एटलीस्ट, इफ नॉट मोर. मिल्खा जी तो 90 प्लस थे. तो जब आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके पास रोल मॉडल्स हैं ही नहीं,
तो फिर आप कैसे अपनी करियर जर्नी या अपनी एजुकेशन की जर्नी के बारे में सोचोगे? पहली चीज ये आ जाती है, रोल मॉडल नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि हाँ, पहले बिल्कुल इंफॉर्मेशन होती नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। अब इंटरनेट ही इंटरनेट है, अब वो उसका ओवर यूज हो रहा है, ओवर अब्यूज हो रहा है, जैसे दीपक जी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। और इंफॉर्मेशन अब है, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल है? आप अगर पंजाब से रिलेटेड कोई भी फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम या कोई एड देखोगे, वो उसमें कितने % आपको बाहर जाने की ही एड दिखेगी। तो जो गाइडेंस मिल भी रही है वो कहाँ की मिल रही है कि बाहर चल जाओ, कितना चल जाओ, कोई गल नहीं, बैंड आए नहीं आए, जड़ी मर्जी क्लास की है, कॉलेज किया नहीं किया, साइप्रस तो भेज देंगे, मैक्सीको तो भेज देंगे, इदां दी गल्लां होंदियां। सो उसके बाद आपको गाइडेंस ही वो मिलनी है। फिर जो लोग वहां पहुंच गए हैं, जिस तरीके से पहुंच गए हैं, उन्होंने क्या क्या पैंतरे लगाए, क्या क्या तरकीबें लगाई पहुंचने के लिए, उसके बाद जब उनसे फिर अल्टीमेटली पूरा यूथ का जो थॉट प्रोसेस है अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कब सोचेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान जो अभी चल रहा है पंजाब में, पंजाब इज कंसिडर्ड कि थोड़ा सा डेवलप्ड है रेस्ट ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर ओडीएफ कम है, ओपन डेफिकेशन कम होती है, पॉवर्टी कम है, ठीक है। तो इतना वो अगर उसमें अटेंशन में नहीं आता, वो सोचते ही नहीं उस डायरेक्शन में कि मैं पंजाब को इंप्रूव करूं। जब आपकी पूरी एक तरीके से सिस्टेमिक जो आपकी कंडीशनिंग कहते हैं, जिसे हम साइकोलॉजी में, आपका पूरा आसपास का जितना भी महकमा है, सिस्टम है, वो आपको पुश कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो आप कैसे जाओगे दूसरी डायरेक्शन में? दैट इज अ प्रॉब्लम। दूसरी चीज ये है कि इन्हीं चीजों से रिलेटेड आपका वर्क एथिक आता है कि काम करना है, कितना काम करना है, मेहनत से करना है, कितना ज्यादा करना है, कितना कम करना है। आपके पास वर्क एथिक्स से रिलेटेड कोई गाइडेंस नहीं है, कोई मेंटरशिप नहीं है। आपके पास एक ही चीज गाइडेंस में है, जो इंस्टाग्राम पे रील आती है, उसमें उसने दिखाया मैंने नए स्नीकर पहने हैं, आज मैंने ये गाड़ी के साथ में फोटो खिंचाई है, आज मैं इस मॉल में घूम रहा था। तो ये जो चीजें हैं, दीज आर दी कंडीशनिंग एलिमेंट्स, ये सारे आपको बार बार कंडीशन कर रहे हैं। दूसरी चीज एक और भी है कि आप देखेंगे ओवर द इयर्स, जब बहुत सारे पब्लिकेशंस में कहा जाता है कि ये जो डेकेड था हमारा, ये लॉस्ट डेकेड है 2010 टू 20, बहुत फॉर लॉट ऑफ रीजंस। उसका एक जो एस्पेक्ट जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, उसके बारे में बात करना चाहूंगा, इंटरनेट से रिलेटेड है। 2018 में इंडिया दुनिया का लीडिंग साइबर बुलिंग कैपिटल बन गया था। एक इप्सोस नाम की कंपनी है बहुत बड़ी, उन्होंने एक सर्वे किया था, 37% इंडियन पेरेंट्स ने यह माना था हमारे बच्चे के साथ साइबर बुलिंग होती है। मतलब कि आप इंटरनेट पे जाते हैं और आपके साथ कोई ना कोई बदमाशी होती है, आपको तंग किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, और स्पेशली ये औरतों के साथ ज्यादा होता है, बच्चों के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप के हैं। तो जब आप इंटरनेट पे जाते हो, वहां पर भी कंपटीशन उतना ही ज्यादा है जितना ऑफलाइन आपको दिखता है। तो कई लोग ये सोचते हैं अगर मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, अगर आप परसेंटेज भी देखेंगे, 10 लाख में से शायद एक इन्फ्लुएंसर सक्सेसफुल होगा, लेकिन आपका वर्क एथिक कहां जा रहा है? वर्क एथिक है मेरा इन्फ्लुएंसर वाला, वो पूरा दिन जो इन्फ्लुएंसर है, या वो लड़की है या वो लड़का है, उसने पूरा दिन नए कपड़े पहनने हैं, फोटोएं खींचनी है, वीडियो बनाने हैं, वहां उस इलाके में जाके इस इलाके में जाके गाने डालने हैं, पूरा दिन मैं यही करूंगा और कुछ नहीं करना। लेकिन जब आप हाँ बाहर चले जाते हो, जैसे वो दीपक जी भी बोल रहे हैं 16-16 घंटे काम कर दीजिए उथे उथे आके 16 घंटे क्यों काम करना पैंदा है? क्योंकि पता है जे रेंट नहीं देता फिर बाहर जावांगे ਅਸੀਂ जे रोटी नहीं खाती फिर काम भी नहीं होना, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਯੂ ਇਨ ਦ ਫੇਸ। ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਵਾਈ ਡਜ਼ਨਟ ਇਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਯੂ ਇਨ ਦ ਫੇਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ? ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੋ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਮਪੈਥੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਹੋ, ਰਿਚ ਸਕੂਲਸ, ਪੂਅਰ ਸਕੂਲਸ, एवरीवन, ਬਟ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮਨ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹੋ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲਾਇਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ,
ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ 22 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਰਿਟ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਕਲੈਟ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਜੀਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਕ ਐਥਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਲਾਇਬਲ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਡੀਸੈਂਟ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਐਟਲੀਸਟ ਅ ਡੀਸੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਰ ਕੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਮੋਰ ਟੂ ਦੈਟ। ਬਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸਟੇਟਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਯੂਥ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨੋ ਰਿਟਰਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ 3 places ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਤੀਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 8th 9th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ IIT JEE ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਫॉर द ਫਿਊਚਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਯੂਥ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਠੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੀਲ ਬਣਾਈ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੀਅਰ ਫੜ ਲਈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾਅ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਏ? ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਛਾਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਪੰਚਾਇਤ, ਟੀਚਰ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੂਮ 'ਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 500 ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, 10 ਲੋਕੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 500 1000 ਬੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਕਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ, ਉਹ 1000 ਬੰਦੇ 'ਚ 100 ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਸੀ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ ਵੀਜ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਨੌਜਵਾਨ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਛੱਡਤੇ ਖਾਲੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ।
ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਮਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। मैं बहुत ज्यादा बोलता, सॉरी, लंबा हो गया। नहीं, दिस वाज, आई थिंक इट्स वेरी नीडेड। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारे यूथ जो है वो ज्यादातर अजम्पशंस के ऊपर जी रहे हैं। ये अजम्पशंस कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, या अगर मैं जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैं जो देख रहा हूँ, अगर ये चीज़ें मेरे पास आ जाए, ये स्नीकर्स और ये जीन्स और ये ब्रांडेड कपड़े मेरे पास आ जाए, तो मुझे खुशी मिल जाएगी। और प्रॉब्लम ये है कि ये सब करके भी खुशी नहीं मिल रही है। So that I think from what all the experts are talking, सबसे बड़ी गल जो निकल के आ रही है वो यही है कि कुछ एजुकेशनल इंटरवेंशंस, यानी स्कूल और कॉलेज के स्तर पर कुछ ऐसे इंटरवेंशंस किए जाएं जिससे हमारे बच्चों को सही गाइडेंस मिले, और वो सही गाइडेंस से समझ पाए कि वो क्या करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सही निर्णय ले सकें कि हमें हमारा पर्पस क्या हो सकता है, हमारी ज़िंदगी को मीनिंगफुल और खुशहाल बनाने का एक क्या हम रास्ता लें, और किस तरह हम अपने जैसे जो करियर एक्सपर्ट्स करते हैं कि अपने पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, हर चीज़ मैच करके और फैमिली बैकग्राउंड देखकर और हर चीज़ देखकर, बच्चे से बात करके, माता पिता से बात करके तभी गाइडेंस देते हैं। तो तभी मुझे लगता है अगर सब कुछ होगा, हाथ सबको मिलाना पड़ेगा, और ऐसे ही शायद यूथ को हम गाइड कर सकें, हाउ टू चूज द वाइजली, हाउ टू चूज करियर्स, हाउ टू चूज डायरेक्शन अहेड। सौरभ, पैंडेमिक रिलेटेड कुछ इश्यूज आए हैं आपके पास विच वुड लाइक टू शेयर, स्पेशली क्योंकि हमने पैंडेमिक में हमने बच्चों के बारे में बात करी, हमने बुजुर्गों के बारे में बात करी है, हमने औरतों के बारे में बात करी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में बात करी है, यूथ भी तो एक तरीके से उनकी एनर्जी लॉक्ड इन रही है, वो उनके पास वो कॉलेजेस ऑनलाइन उन्होंने करे हैं। कितने यूथ है जिन्होंने पैसे, जो फीस है वो बाहर बहुत सारे पैसे भरे हैं, लेकिन इंडिया में बैठ के पढ़ाई करी है, तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल तो मैं समझ ही नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा होगा। आई एम श्योर वो जब कोई एडमिशन मिलती है तो कितनी एक्साइटमेंट होती है कि हम नए देश में जा रहे हैं, नए कॉलेज में जा रहे हैं, या हम नए सिटी में जा रहे हैं, और अब हम अपने ही घर में लैपटॉप के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या बच्चों की माइंडसेट और उनकी मानसिकता पे उसका क्या असर हुआ है? वेरी वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन मैडम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆਈਡੀਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ देयर ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਸਫਰਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲੇਗੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਡਿਸਅਪॉइंटेड ਵਿਦ ਲਾਈਫ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਗੂਗਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਗਈ। ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸਅਪॉइंटमेंट ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸਅਪॉइंटमेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੋਰਮਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫੇਟਲਿਜ਼ਮ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ। जी पूछिए। तो पहला क्वेश्चन मैम यही था कि ਜਿਹੜੀ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम रील्स और ये सब जो है, और जब वो बार बार वीडियो देखते हैं NRI लाइफ के, और वो देखते हैं कि नहीं बाहर ही आके करेंगे, एजुकेशन भी बाहर ही करेंगे, सब कुछ बाहर करना है, जब वो नहीं होता तो उनका जो मेंटल इम्पैक्ट है, किस किस टाइप के आपने मेंटल इम्पैक्ट देखे हैं, एंड मतलब कितनी देर तक वो चले हैं, उनके कोई सॉल्यूशंस हैं? तो देखिए, क्योंकि हम पंजाब में काम कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें पता है कि ये जो एक हवा चल पड़ी है कि देश छोड़कर बाहर जाना है, तो इसका सबकी ही मानसिकता पे कोई ना कोई प्रभाव तो आता ही है, क्योंकि आप सपने लेके जाते हो और अगर वो पूरे ना हुए, एक तो जो है ये लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं बच्चे की वहाँ जाके लाइफ कितनी मुश्किल होती है। वो या तो किसी ना किसी रिलेटिव के पास वहाँ पे रहते हैं, या वो किसी पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहते हैं, और बहुत वो कंडीशंस बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि वो किसी रिलेटिव के पास अगर रहते हैं तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का काम भी करें वहाँ पे। तो यहाँ के बच्चे अच्छे फैमिलीज़ के होते हैं, उनको काम करने की इतनी आदत नहीं होती है, और जो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात दीपक जी ने और आपने दोनों ने करी है, वो है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्यों, हम सबके अंदर ये है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये बहुत एक बड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर है। हम जो भी काम करते हैं, सबसे अगर हम घर से कदम बाहर रखते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं कि हम दूसरे हमें कैसे देख रहे हैं, हमें दूसरे लोग कैसे किस नज़र से परसीव कर रहे हैं, या हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। और जो यूथ है, दीपक जी ने ये भी मेंशन करा था कि वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चते हैं अपने लुक्स पे, अपीयरेंस पे, सो देन दिस व्हाट अदर्स आर थिंकिंग ऑफ देम, ये जो फैक्टर है ये उनके लाइफ में बहुत स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से मैंने देखा है बहुत सारे यूथ को कॉन्फिडेंस इश्यूज के साथ ग्रैपल करना पड़ता है। उनको हमेशा यही लगता है, ये फीलिंग आती है कि शायद वी आर नॉट गुड इनफ। तो अगर फिर वो, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में गाइडेंस की कमी तो है ही, कुछ उनके अजम्पशंस है जिनको या वो उन्हीं बिलीफ सिस्टम्स के साथ जीते हैं, उनको ठीक करने का उनके पास एक मौका नहीं मिलता। तो वो सही हर चीज़ गाइडेंस और माहौल की वजह से वो कुछ अलग ही उनके बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं। फिर वो, जैसे आपने कहा कि दूसरे देश में जाके सेटल होना आसान तो नहीं है, धक्के खाते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। इसी 1 साल के दौरान मेरे पास काफ़ी बच्चों के केसेस काउंसलिंग के लिए आए थे जिनको डिपोर्ट किया गया था। उनकी मानसिकता पे भी बहुत बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं ऑब्वियसली
एक हमारे यूथ पे ये भी तो है ना, प्रेशर है कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, वो और कभी-कभी इट्स नॉट जस्ट अ फैमिली, पूरे पिंड की एक्सपेक्टेशंस होती है कुछ बच्चों के ऊपर जब वो बाहर जाते हैं। तो जब वापस आना है, दे फील लाइक अ फॉलन हीरो, एंड देन दे फील कि हमने वो सब नहीं किया जो हमारे से उम्मीदें थी। तो ये सब बहुत सारा बोझ होता है दिमाग पे जब वो जाके और फिर कुछ भी काम इसलिए कर लेते हैं कि वापस नहीं आना, क्योंकि वापस आना इज इक्वल टू फेलियर। तो इसीलिए कम्युनिकेशन भी वो छुपा लेते हैं। कम्युनिकेशन पे मैं बात बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक ये पॉइंट है सौरभ, जो मैं बताना चाहूँगी कि यूथ डोंट फील कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग विद फैमिली। एंड ये मेरे लिए हमेशा जब भी मैं यूथ के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक और बहुत सीरियस मसला है, जो मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें बदलाव आना चाहिए। दीपक जी ने भी मेंशन करा कि अपने माता पिता के साथ संपर्क करो, बातचीत करो, लेकिन ये नहीं है। या तो यूथ को लगता है कि हमारे माता पिता को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वो सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं है, उनको सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो इसलिए हमारे माता पिता आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है, उनको कुछ नहीं पता। या हमारे जो पियर्स हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो कुछ ऐसी मानसिकताएं हैं जिसकी वजह से ओवरऑल यूथ के ऊपर इनके उनके सेल्फ एस्टीम पे, उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे, उनके बिहेवियर पे, और उनके चॉइसेस पे ये एक लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ जाता है इसकी वजह से। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अपने यूथ को ये नहीं सिखा पाए हैं कि आप जिंदगी को एक दूरबीन के साथ देखिए, टेलीस्कोप के साथ देखिए, लुक एट द लॉन्ग टर्म। हम वो एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में अपने बच्चों को नहीं दे सके। तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि अभी करा, अभी उसका रिजल्ट चाहिए, अभी एसएमएस भेजा, अभी उसका रिप्लाई चाहिए, अभी ईमेल डाला, उसका रिप्लाई अभी चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट यूथ। वेरी वैलिड मैम। इसमें ना मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ, एक्चुअली साइबर बुलिंग से ही रिलेटेड है, क्योंकि इंटरनेट से आपकी बात की। साइबर बुलिंग के मेरे हर वेबिनार में मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एक ही सोल्यूशन है साइबर बुलिंग से। तो अब शायद वो तो बचना मुश्किल है, क्योंकि 1/3 आपके साथ होना ही होना है, ये प्रोबेबिलिटी है 37%। एक 3 बार आपके साथ साइबर बुलिंग हो सकती है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसके बाद क्या, साइबर बुलिंग हो गई, किसी ने आपको तंग किया है, उसके बाद क्या करोगे? उसके सपोर्ट सिस्टम, आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का। वो सपोर्ट सिस्टम तभी बनेगा जब आप अपने पेरेंट्स से खुल के बात करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं समझ आता इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे क्या होता है। आप उनको बताएंगे, उन्होंने सीधा फोन छीन लेना है आपसे कि करो ही ना, प्रॉब्लम की जड़ ही खत्म कर दी। बट पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि जिस तरीके से आजकल की यूथ इंटरनेट को यूज कर रही है और जिस तरीके से हम यूज करते हैं बहुत अलग है। उनकी पूरी सोशल लाइफ, उनकी रेप्यूटेशन ऑनलाइन डिपेंड करती है। हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो फिर जब ऑनलाइन आपके ऊपर प्रेशर आता है, उस प्रेशर को समझने के लिए आप अपने क्लोज्ड वंस के पास जा ही नहीं पाते, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि ऑनलाइन क्या हो रहा है। और इसीलिए साइबर बुलिंग इंडिया में ज्यादा भी है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे जिनके साथ साइबर बुलिंग होती है वो रिपोर्ट ही नहीं करते कि मेरे साथ साइबर बुलिंग हुई है, क्योंकि उनको या तो पता नहीं है कि साइबर बुलिंग क्या है, या फिर उनको डर लगता है कि अगर यहां से भी निकले गए तो फिर लाइफ में बचा ही क्या। पेरेंट्स तो वैसे भी नहीं समझ सकते। इसी से रिलेटेड गुड़गांव में लास्ट ईयर एक सुसाइड भी हुई थी। यही रीजन था कि उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा था। 17 साल के लड़के को उसने बिल्डिंग से जंप मार के आत्महत्या कर ली। सॉरी फॉर दैट। Yes, नहीं, we need to, I think, be aware of mental pressures on youth, और I think ये एक clear message हर किसी के पास ये जाना चाहिए कि कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। रीच आउट टू एनीबडी, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे फ्रेंड्स, मेंटर्स, कोई भी, बट टॉक, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और किसी ना किसी से बात करके हल ज़रूर निकल आता है। तो बात ज़रूर करिए, प्लीज़ कम आउट एंड टॉक अबाउट वॉट एवर इट इज़। Being a youth in today's world is very very challenging, very very difficult, and आपके सामने बहुत सारे समस्याएं हैं जो कुछ साल पहले तक नहीं थे, एंड
आपको कोई ना कोई गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपको लेनी चाहिए. That is my message. And with these words, we would like to hand over back to Inderjeet. So much. I think it's been such an invigorating, such a thought-provoking discussion, and I'm glad that अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद Deepak has been able to stay with us all this while, and he's been listening, and I could see him making notes with and sitting there with rapt attention. So I think ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम सारी शाम बात कर सकते हैं. लेकिन मैं इस वेले फिर वापस एक बार दीपक जी वाल जाना चाहूँगा. If he has some thoughts to share after hearing the experts, if some of the questions, very pertinent questions जो उन्होंने रेज किए थे, उनके अगर कुछ जवाब मिले हों और अगर वो कुछ दो शब्द कहना चाहें before we conclude today's webinar. थैंक यू साहब, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ मैं नोट्स बना रहा ਸੀਗਾ ਤੇ 2-3-4 पॉइंट्स जो आप लोगों ने बोले, सौरभ जी, पल्लवी मैम ने बहुत अच्छा सारे पॉइंट्स रेज किए. 3-4 चीजें बस मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली गल ਤਾਂ ਇਹ कि पहली वधिया चीज है कि आप आज अपनी प्रॉब्लम ਨੂੰ डिस्कस कर रहे हैं. जैसे कि जब वो मूवी आई थी उड़ता पंजाब, तो लोगों ने कहा देखो जी हाय तौबा मचा दी, पंजाब में ये है वो है, लेकिन उसमें कुछ समझदार लोगों ने कहा कि एटलीस्ट वी आर अ स्टेट व्हिच इज एक्सेप्टिंग कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है और हम इसको एड्रेस कर रहे हैं. ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी बिगनिंग है. मैं सोचता हूँ कि ये आज ये अगर वेबिनार हो रहा है, ये 5 साल बाद होता, उसकी वजह ये आज हो रहा है, तो हो सकता है अगले 5 साल में हमारे पास बेटर सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे. दूसरा, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਫ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਐਨਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ. ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗੀ कि भी पंजाबी सिंगर्स और सिनेमा, अब गाने के लिरिक्स आप लोग देखते ही हो कि यूपी के नजायज हथियार वर्का और ये सारे इस तरीके के जो लिरिक्स हैं, मतलब हम गन कल्चर भी प्रमोट कर रहे हैं, हम सेक्स, वायलेंस, सब कुछ, इतना ज्यादा ड्रग्स प्रमोट कर रहे हैं. ये या तो फिर हम रेगुलेशन, जो रेगुलेशन की गल आंदी है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ रेगुलेशन ਅਸੀਂ नहीं चाहते, फिर सेल्फ रेगुलेशन किथे आ, वो मैसेज कदों आएगा? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ काम कर रहे हैं अपने सिनेमा ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਤੇ ਲਾਸਟ थोड़ा ਜਿਹਾ, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और हम लोग ऐसा मानते थे, हमेशा बचपन से हमें सिखाया गया कि पंजाबी पेरेंट्स जो है वो और पेरेंट्स से ज्यादा फ्रैंक और ज्यादा एडवांस होते हैं. इनफैक्ट टू द एक्सटेंट दैट वी कैन नॉट वेरी इजीली शेयर अ ड्रिंक विद आवर पेरेंट एज कंपेयर्ड टू समवन हु कैन डू इट इन पंजाब. ये एक अच्छी बात है. इसका मतलब ये है कि हमारा पंजाबी जो अभिभावक, जो पेरेंट है, वो अपने बच्चों से खुलने को तैयार है. उसका इतिहास ऐसा रहा है. तो फिर वो आज तक जब when you can open up for a drink, I think you can open up for other issues also. तो इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर किसी पेरेंट को हम बच्चों से ओपन होने के लिए हिंदुस्तान में, इंडिया में कह सकते हैं, तो आई थिंक हमारा पंजाबी पेरेंट एक रोल मॉडल बन के उभरेगा. थोड़ी सी इसके लिए हमें उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है. बस ये 4 मेरे पॉइंट्स थे. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. That was a very beautiful conclusion. इनफैक्ट जैसा मैंने कहा कि बातें बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन सौरभ की कुछ बातों से एक दो चीज़ें मेरी नज़र में भी आई कि वी टॉक अबाउट ग्रेट नेशंस लाइक अमेरिका एंड कनाडा एंड आपने बात की सॉरी कैलिफोर्निया की, जहाँ पानी कम है, पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया. उस दिन मैं किसी से बात कर रहा था जो वहाँ फार्मिंग करते हैं, 500 फुट नीचे तक, and they're spending hundreds, thousands of dollars to dig borewells to continue farming. एंड हमारे यहाँ भी वही स्थिति होने वाली है. एंड उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इट्स इम्पॉर्टेंट टू अवेकन टूवर्ड्स दैट. और आयरॉनिकली आप देखिए कि जो नेटिव अमेरिकन्स थे, जो अमेरिका के सही अधिकारी हैं और जो उस ज़मीन पर शुरू से बसे हैं, वो आने वाली 10 पीढ़ियों का इंतज़ाम करके उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करते थे. और एक दुर्भाग्यपूर्ण गल है कि असी आने वाले 20 साल
ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਯੈਸ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰਸ, ਟੌਪ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਵਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਗੱਭਰੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅ ਹੰਗਰ ਐਂਡ ਅ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡਾਇਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਿਆ ਪਲਾਇਆ ਈਗਰ ਟੂ ਵਰਕ ਕੇਪੇਬਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਓਨਸ ਕਮਸ ਔਨ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮਿਡਲ ਏਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਓਨਸ ਕਮਸ ਵਿਦ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ, I would call Saurabh and Deepak, people who are thinking about these issues. I think there is a ray of hope. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we will be able to do tremendously. ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, sageadvice.in। ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ snanda.in, the address is there। ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਆਲ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦ ਟੀਮ ਫਰਮ ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ relevant issue ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। I'll thank you, Deepak Parekh ji, for sparing all the time and being with us, Pallavi and Saurabh for being wonderful resources for this evening. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Okay.